Hello everyone, I hope you all are doing great. In today's video, I'll be going to describe about the IR spectroscopy. Actually, I have described this spectroscopy selection rule and various methods in my group theory and spectroscopy playlist. I'll share with the link of that previous video as well. In today's video, I'll be describe about some basic concept, how we prepare the sample, what is the instrumentation, and principle behind it. So let's first discuss about what is IR spectroscopy. Again, it is an analytical technique which measure the interaction of the infrared radiation either by absorption, emission or reflection. In previous video of UV, we have find out that there are two methods to understand the UV is absorption or a transmit. So absorption basically when the radiation absorbed from the sample, and emission will take place when the leftover, basically the component absorbs some radiation, the leftover is called as a transmittance. In the similar way, and in IR, we are understand this through absorption, emission, and reflection as well. So there are three regions in IR we have studied: near IR region, mid IR region, far IR region. And the higher energy is the near IR region, which is approximately of 14,000 to 4,000 centimeter inverse, and the mid and IR region is 4,000 to 400 centimeter inverse. The centimeter inverse is basically a reverse of wavelength, that is 1 by lambda. So we are using this unit of measurement in IR. Unit are very much important in any kind of spectroscopy. So keep an eye over the units whenever you deal with any kind of numerical part. So keep an eye over the conversion which they are needed. So sometime they have given the wavelength in nanometer, and later on they are asking us from to give the solution in micrometer. So we have to keep in mind that we have to do adequate unit conversion before giving any final result. Okay. The next part is the far IR region, which is from 400 to 10 centimeter inwards. The measurement is again, we are using infrared spectrometer in order to measure the IR. The principle behind it, the molecule absorb or emit infrared light when they are chemical bonds change vibrational states. Yes, whenever we apply any energy to them, these molecules start vibrating, and their vibrational frequencies are changing, and which helps us to find the IR spectra of that particular molecule. So there is basically a net change in a dipole moment as molecule vibrates or rotate. So there are two regions we are more focused in IR. That is, first is the functional group region, and another one is the fingerprint region. Functional group regions are like as carboxylic acid, aldehyde, alcohol, ether, ester. These are called functional groups, right? Whenever there are certain set of frequencies are observed in the region of functional group, they are called functional group region frequencies. And the fingerprint regions are the special region which shows by some characteristic compounds or some characteristic molecule. That's why we call it as a fingerprint. Now, there are types of vibrations in IR. First is stretching, and another one is a bending. Stretching, basically, the two or more bonds vibrate in and out together, so that we call it as a stretching one. Stretching, अगर हम सिंपल सा कंसिडर करें, एक रबर बैंड को आप स्ट्रेच कर रहे हो, राइट? तो अगर आप रबर बैंड को दोनों फिंगर से इक्वली आउटसाइड या इनसाइड स्ट्रेच कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. मतलब आपकी दोनों फिंगर्स या तो इनवर्ड मूव कर रही हैं या तो आउटवर्ड मूव कर रही हैं. दैट वी कॉल इट एज अ सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग. हाउएवर ऑन द asymmetrical stretching is when we stretch one component or one bond at shorter distance, another one at the longer distance. That becomes a asymmetric stretching.
राइट। सो वो कंप्रेसिंग भी हो सकता है, वो स्ट्रेचिंग भी हो सकता है। मतलब आप एक बॉन्ड को किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, आप उसे आउटवर्ड स्ट्रेच कर रहे हो और दूसरे को इनवर्ड मूव कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। और अभी जो हमारे पास बेंडिंग है, दैट इज आर फर्दर 4 टाइप। बेंडिंग बेसिकली क्या है, आप उसके बॉन्ड एंगल को चेंज करोगे। स्ट्रेचिंग में आपने क्या किया, उसके बॉन्ड डिस्टेंस को चेंज किया। जैसे अगर आप CH का एक मॉलिक्यूल ले लो, CH का इमेजिन किया बॉल्स, तो आपने उनको स्ट्रेच किया। CH2 बेसिकली हमें 3 एटम्स चाहिए इन ऑर्डर टू शो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग बोथ। तो आपने CH2 का सपोज मॉलिक्यूल लिया, आपने उस H को स्ट्रेच किया। जब आप H को दोनों दोनों H को आउटवर्ड स्ट्रेच करते हो, दैट बिकम्स अ सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। जब आप एक H को इनवर्ड मूव कर रहे हो और एक H को एलोंगेट कर रहे हो, तो दैट बिकम्स अ asymmetrical stretching. And the bending is the bending of the bonds, basically around the angles of the central atom. तो अभी सपोज करो आप वाटर का मॉलिक्यूल इमेजिन कर लेते हैं। तो वाटर में हमारे पास कितना एंगल है, 104.5, राइट। तो उसके अराउंड आप मूव करोगे चार। अपने सीजरिंग क्या है, जैसे कैंची चलती है, एक एटम अंदर की तरफ मूव करेगा और एक एटम बाहर की तरफ, तो दैट बिकम अ सीजरिंग। रॉकिंग क्या है, दोनों जो सीजर के पॉइंट्स है आप आउटवर्ड ही मूव कर रहे हो, दैट बिकम रॉकिंग। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इधर यू वांट टू बिकम, आप दोनों को इनसाइड मूव कर रहे हो या दोनों को आउटवर्ड मूव कर रहे हो, दैट बिकम अ रॉकिंग, लाइक अ पेंडुलम। और वैगिंग क्या चीज है कि आपका वाटर मॉलिक्यूल सपोज करो प्लेन में था, फिर आपने उसको उठाया और ऊपर की तरफ या दोनों एटम्स को नीचे की तरफ मूव किया, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, तो दैट बिकम्स वेगिंग। एंड ट्विस्टिंग इज, आप एक एटम को ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो, दूसरे एटम को नीचे की तरफ मूव कर रहे हो, दैट बिकम ट्विस्टिंग। तो मैंने पिक्चर के थ्रू डिस्क्राइब किया है। आई होप ये आपको डिस्क्राइब करे हर एक मोशन के बारे में। यस, जो प्लस और माइनस ट्विस्टिंग और वेगिंग के अराउंड शो करे हैं, ये हमारे पास वेज नोटेशन होती है। वेज नोटेशन बेसिकली डिस्क्राइब द 3D डिमेंशनल मॉलिक्यूल इनटू अ पेन और अ पेपर। तो प्लस साइन का मतलब होता है आप उसे पेपर से ऊपर की तरफ यानी कि अबव द प्लेन लेके आ रहे हो, और माइनस का मतलब है आप उसे बिलो द प्लेन पीछे की तरफ लेके जा रहे हो। तो it's just a notation to describe the three-dimensional molecule. Otherwise, it's very hard to describe three-dimensional. So this is a wedge representation. इस पर भी अगर हमें फ्यूचर में कभी टाइम मिला तो आई मेक वीडियो ऑन दीज रिप्रेजेंटेशंस, ये नोटेशंस कैसे डिस्क्राइब करते हैं और कैसे आप इन्हें यूज करते हो। नेक्स्ट है आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन। ये बिल्कुल यूवी की तरह सिमिलर चलेगी। आपको एक सोर्स चाहिए, दिस टाइम दिस इज IR सोर्स, और उसके बाद लाइट सोर्स। लाइट ऐसे ही आपके मोनोक्रोमेटर के थ्रू पास करेगी आपके रेफरेंस और सैंपल सेल से, और लेटर ऑन आपके पास डिटेक्टर और स्प्लिटर टू डिस्क्राइब दैट, और उसके बाद आपके पास स्पेक्ट्रा रीड करने के लिए डिटेक्टर लगा हुआ है। तो अभी आप किस रीजन में का एलिमेंट डिटेक्ट कर रहे हो, तो उस रीजन की सोर्स आप यूज करोगे। लाइक एज फार IR मीन्स आप फार रीजन के लिए हम मरकरी प्रेफर करते हैं, नियर IR के लिए हम टंगस्टन हेलोजन का लैंप प्रेफर करते हैं, और मिड IR इज द नर्स्ट ग्लोबल वन। ज्यादातर अपने मॉलिक्यूल सारे मिड IR में कवर होते हैं, तो दैट्स व्हाई आवर मेन फोकस व्हेनेवर वी डू एनी एनालिसिस, दैट इज मिड IR। अभी ये एग्जांपल्स मैंने फिंगरप्रिंट रीजन और फंक्शनल ग्रुप रीजन, इसमें फंक्शनल ग्रुप रीजन डिस्क्राइब हो रहा है पिक्चर के थ्रू। तो इसमें क्या है, अभी आपके पास हमने प्रिंसिपल डिसाइड किया था कि आपका डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, राइट। तो अगर डाइपोल मोमेंट चेंज हो रहा है तभी आपको कोई ना कोई स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो ये आपका बेसिक प्रिंसिपल है। समबडी आस्क यू दैट कार्बोनिल मॉलिक्यूल इज एबल टू शो द IR स्पेक्ट्रा, नो, क्योंकि उसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या क्या है, चेंज नहीं आ रहा। क्लियर। तो इसलिए आपका जो, जैसे अगर H2F2 मॉलिक्यूल जहां पर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है और बॉन्ड डिस्टेंस आप चेंज नहीं कर पा रहे, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स आर नॉट सुटेबल फॉर द IR स्पेक्ट्रा। ओके। उसके बाद इस पिक्चर में मैंने कुछ कार्बोनिल ग्रुप हो गया
ऑक्सीजन ग्रुप हो गया, जो OH की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है, क्योंकि अल्कोहल बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, तो स्पेक्ट्रा में अगर 3350 की अराउंड पीक आती है, स्ट्रॉन्ग शार्प बैंड आता है, तो दैट सिग्निफाइज दैट दे आर दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कंसिडर द OH इन द ग्रुप। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन करते हैं। हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें हमारे अननोन मॉलिक्यूल के अंदर की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करती है। जैसे IR हमें हेल्प करती है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द फंक्शनल ग्रुप रीजन इट हैज। If the molecule has any kind of functional group present over there, it will help us to deduce that. Like as aromatic compound, ज्यादातर अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो उसमें एरोमेटिक कंपाउंड कंसिडर होते हैं, तो हमारे पास बैंड्स ऑब्जर्व होते हैं। जैसे मोनो हुआ, जैसे एक ही उसके साथ कंपाउंड लगा हुआ, तो बेंजीन रिंग प्रॉपर होगा तो 750 के पास हमें बैंड दिखेगा। तो उसी तरह से ऑर्थो में जब दो फंक्शनल ग्रुप्स एक दूसरे के बिल्कुल एडजेसेंट पे हो, दैट बिकम ऑर्थो, और वन बॉन्ड का डिस्टेंस हो, दैट बिकम मेटा। तो कॉरेस्पॉन्ड वहां पे डायग्राम भी देखो। ऑर्थो मोनो का मतलब एक ही ग्रुप R1 को शो कर रहा है, जो आपके पर्पल बॉक्सेस शो कर रहे हैं उस डायग्राम के अराउंड, उनको ऑब्जर्व करो। ऑर्थो में R1 एंड R2 आर एडजेसेंट टू ईच अदर। आर मेटा में R1 और R2 में वन बॉन्ड डिस्टेंस है, और पैरा में दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। क्लियर? तो उस हिसाब से हमारे पास हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वेदर आर एरोमेटिक कंपाउंड हैज ऑर्थो ग्रुप, पैरा ग्रुप एंड अ मेटा ग्रुप, क्योंकि सबकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी में काफी डिफरेंस है। तो इस तरह से हम बेसिकली मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिड्यूस कर पा रहे हैं। कार्बोनिल ग्रुप का हमेशा याद रखना, कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड में 1730 और 50 के पास हमारे पास पीक होगा स्ट्रॉन्ग। कीटोन में 1700 के पास, कीटोन में दोनों अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से अल्काइल ग्रुप्स के पास चली जाती है। इसकी वजह से उनका जो रीजन है फंक्शनल ग्रुप का, वो फिंगरप्रिंट रीजन, वो थोड़ा सा कम बैंड पे, मतलब कम एनर्जी चाहिए अब उसे स्ट्रेच करने के लिए। क्योंकि आपको पता है ना, जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होएगा, आपको स्ट्रेच करने के लिए या बेंड करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे उतनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी आएगी। क्लियर? तो उसी तरह से इन्होंने अमाइड अमीन नाइट्राइल के बारे में भी बोला है कि उनके स्ट्रेचिंग बैंड आपको कहाँ कहाँ ऑब्जर्व हो सकते हैं। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप रीजन है। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन हमने पहले डिस्कस करा कि यूनिक स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंट फाइंड आउट करने में हेल्प हो जाएगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोग्रेस अगर स्टडी करना हो, सपोज करो कि आपने कार्बोनिल का रिएक्शन किया और उसके बाद आपने उसमें हाइड्रोजन का एडिशन करा, तो अभी कार्बोनिल ग्रुप किस में चेंज हो गया? अल्कोहल में चेंज हो गया। तो आपने रिडक्शन करा बेसिकली। तो अभी कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी रिएक्शन से पहले शो होगी, पर जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब आपके पास OH की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी शो होगी। तो इसका मतलब आपको रिएक्शन का प्रोग्रेस पता चल गया कि ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट, आप इम्प्योरिटीज डिटेक्ट कर सकते हो, और इसके हेल्प से आप प्योरिटी भी एनालाइज कर सकते हो अपने सब्सटेंस की। नाउ ये वाला पार्ट मुझे लगता है कि सैंपल प्रेपरेशन बेसिकली उनके लिए है। एज सच एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता, हमने सैंपल कभी प्रिपेयर नहीं किया। हार्डली आप थोड़ा सा उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो दैट वी आर एबल टू प्रिपेयर सॉलिड सैंपल, लिक्विड और गैसेस सैंपल की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। बट yes, when we work at the industry level, so we have to describe those kind of procedure so that we can able to explain to another person that uh, how we prepare solid, liquid और gaseous sample। तो इंटरव्यू में भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि अगर आप IR के लिए सॉलिड, आपके पास कोई एनालाइट है, तो उसको आप कैसे प्रिपेयर करोगे इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द IR स्पेक्ट्रम। एक तो तरीका है कि आप अपनी जो उसकी गैस प्लेट्स हैं, ग्लास प्लेट्स हैं, उसके बीच ही अपना डायरेक्टली सैंपल प्लेस कर दो। ये तो एक वो मेथड हो गया। दूसरा मेथड है कि आप KBR पैलेट मेथड यूज करो, ग्राइंड करो सॉलिड सैंपल को विद पोटाशियम ब्रोमाइड। पोटाशियम ब्रोमाइड हम इसलिए यूज करते हैं कि ये इसका खुद का डाइपोल मोमेंट 0 नेट शो करता है, तो इसलिए इसका कोई रोल नहीं होता IR स्पेक्ट्रा को। मैंने उस दिन भी पिछली वीडियोस में भी आपको डिस्क्राइब करा था कि हमारे जो रेफरेंस होते हैं वो ऐसी चीजें होती हैं जो
इनर्ट की तरह बिहेव करें उस सिस्टम के अंदर, ताकि उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो हमारे जिसको सैंपल को हम एनालाइट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो खराब ना हो। क्लियर? तो ये आपका सॉलिड सैंपल इज इन द 1:100 रेशियो. Compress the mixture into a thin transparent pellet using a hydraulic press, then we analyze that pellet. Okay. उसके बाद mull method, basically this is a mix the solid sample with the nuzole, or it's a kind of paste we are form, and place that mull between two salt plates, and then we analyze it. And diffuse reflectance में mix the solid sample with the IR transparent powder, जिसमें basically such as again KBR, place that mixture into a specialized reflectance, क्योंकि हम reflectance के थ्रू भी इसे एनालाइज कर सकते हैं ना, एब्जॉर्प्शन, एमिशन और रिफ्लेक्टेंस. तो रिफ्लेक्टेंस के टाइम पे आप इसको डिफ्यूज मेथड यूज करोगे, ड्रिफ्ट बेसिकली. तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्हेन वी यूज द ड्रिफ्ट, तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दैट वी कैन यूज दिस मेथड. लिक्विड सैंपल में आप नीट मेथड यूज कर सकते हो, डायरेक्टली ड्रॉप आपकी ट्रू आईआर ट्रांसपेरेंट सॉल्ट प्लेट्स के बीच में डायरेक्टली ड्रॉप प्लेस करो लिक्विड का, एंड यू कैन गेट एनालाइज दैट आईआर सैंपल. उसके बाद सोल्यूशन मेथड में अगेन आपको एक नॉन एब्जॉर्बिंग सॉल्वेंट चाहिए जिसका अपना रोल ना हो, तो जनरली वी आर प्रेफर्ड CCl4 carbon tetrachloride and a chloroform CaCl3 in order to analyze that particular analyte. Place the solution in a liquid cell. Now you need a cuvette in order to place the sample. उसके बाद gas cell method, introduce the gas sample into a gas cell with IR transparent windows and use a longer path to enhance the absorbance. तो gaseous cell के लिए हम ये mind में रखते हैं. That's all about this video. फिर से अगेन मैंने ये वीडियो उस पर्सपेक्टिव से रेडी करा था कि एक तो आईआर का ओवरव्यू हो जाएगा. आईआर के सिलेक्शन रूल, वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि आईआर के सिलेक्शन रूल क्या हैं. इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशंस, वो रोटेशनल वाइब्रेशन, और विद इन दैट वो सारा मैंने ग्रुप थ्योरी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जब आईआर डिस्कस करा था, आई विल एक्सप्लेन दैट वीडियो इन डिटेल. तो मैंने ये वो वाला पोर्शन इसमें कवर अप नहीं करा. सेकेंड थिंग इज, अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल पे आईआर को कैसे यूज करते हैं, वी हैव टू प्रेफर यूएसपी चैप्टर नंबर 854 फॉर द फार्मास्यूटिकल. और उसके अंदर अगेन आपके क्या वैलिडेशन है, क्या एक्सेप्टेंस है, क्या एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है, दैट इज अकॉर्डिंग टू दैट एसओपी. क्लियर? अगर इफ यू नीड दैट कि उस यूएसपी चैप्टर को भी अच्छी तरह से इलेबोरेट किया जाए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो आई विल बी मेक video on that as well. That's all about this video. I hope it helps you to understand IR in a better way, and keep learning, guys. Thank you.